Hello dear students. Now today we are going to start our third lecture in the lecture series of the stress strain, okay, or strength of material. So hello students. Now today we are going to start our third lecture of strength of material series. Okay. So this lecture basically includes the application of the Hooke's law. In the earlier two lectures, what we have discussed how the materials behaves when an external load is being applied, and then we discussed the stress strain diagram. Now in this lecture we will discuss the Hooke's law and its application, okay, how the length will be changed by the application of a force. So now Hooke's law. So in our second lecture we have already discussed that Hooke's law says that if an external load is applied to a body, then the body will deform, obviously. Okay, जब भी हम external load लगाएंगे तो body deform होगी. तो Hooke's law ये कहता है कि जब तक within the elastic limit, the deformation will be, the stress is directly proportional to strain within the elastic limit. Hooke's law says that stress is directly proportional to the strain. Okay, this stress and strain, as we have already discussed, that this stress and strains are elastic stress and elastic strain. So stress is directly proportional to strain, and ये stress जो directly proportional होता है, this is up to within the elastic limit. Always remember, within the elastic limit. Or this is equal to E times of epsilon. What is E? This E is nothing but it is elastic constant. Elastic constant of the material. ठीक है. अब देखिए एप्लीकेशन, अब हम एप्लीकेशन पार्ट्स को करने जा रहे हैं कि सपोज करिए ये कोई एक हमारा मटेरियल है और इस मटेरियल के ऊपर हमने कोई लोड P अप्लाई कर दिया. दिस इज योर टेंसाइल लोड. तो व्हाट विल हैपन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड, ऑब्वियसली सिंस द लोड इज योर टेंसाइल, देन इट विल टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड. ओके, now let us assume that the initial area and length of this material is A and L respectively, and by the application of this force P, the material has increased its length by delta L. Then according to the Hooke's law, sigma, that is stress, is directly proportional to strain, that is E epsilon. Then what is the stress? Stress is nothing but applied load divided by cross sectional area. Then this is E, and what is strain? Change in length divided by total length. So what is delta L? So this delta L comes out to be PL upon AE. So this is the, basically this is the change in length of a material, है ना. तो किसी भी मटेरियल के ऊपर हम लोग कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो वो कितना चेंज आएगा, वो चेंज हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे, दिस डेल्टा एल. अब देखिए ये डेल्टा एल बेसिकली चेंज जो है, ये चेंज क्या होगा? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. अब देखिए अगर सपोज कर लीजिए फोर्स हमारा टेंसाइल है, then what will happen? If the force is tensile, then its tendency is to increase the length, so final length will be greater than the initial length. So in that case delta L will be positive. So it is positive when load is tensile, and this value is negative when
लोड इज कॉम्प्रेसिव। ठीक है ना, अगर कॉम्प्रेसिव लोड होगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए क्या होगा कि हम लोग हुक्स लॉ के जो अप्लाई करेंगे, तो हुक्स लॉ के एप्लीकेशंस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। तो इंपॉर्टेंट नोट्स मीन्स सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द हुक्स लॉ। ओके, तो कंडीशंस क्या क्या रहेंगी? कंडीशंस, फर्स्ट, always draw the free body diagram of a members. So draw the free body diagram for each member of the structure. ठीक है ना, हर मेंबर का, स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर होंगे हम सारे मेंबर्स का फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम है ना। तो ये किस लिए हेल्पफुल होता है? दिस फ्री बॉडी डायग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल लोड और एक्चुअल एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू ए पर्टिकुलर मेंबर। तो फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल लोड ऑन ए पर्टिकुलर मेंबर, हाउ द लोड इज ट्रांसफरिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से चेक करते हैं। सेकेंड कंडीशन होती है अप्लाई करने की कि एवरी मेंबर शुड बी इन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ईच मेंबर और पार्ट्स ऑफ द मेंबर मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एवरी मेंबर को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम में अगर है तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशंस होंगी मेरी? इक्विलिब्रियम के लिए हमारी दो कंडीशन होंगी। एक तो सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल लोड शुड बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द मूवमेंट शुड बी 0। तो समेशन एफ इज सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल लोड, तो दैट इज ऑलवेज बीइंग 0, मीन्स देयर इज नो any unbalanced force into the system. And similarly, summation of all the movements generated due to the application of load, if any movement is generating, then all the movements should be 0. Okay, their summation should be 0, means there should not be any unbalanced movement will be present into the material. So while applying the your Hooke's law, make sure that each and every member should be under equilibrium condition, and you have to satisfy these two equilibrium इक्वेशंस। ओके, थर्ड पार्ट हम लोग को करना होगा। थर्ड कंडीशन है कि द मटेरियल जो होगा, तो मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब आता है कि व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो नाउ लेट्स डिस्कस होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो देखिए, होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? होमोजीनियस मटेरियल होता है कि कोई भी मटेरियल है तो उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, है ना। और जब हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स का वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी ऑलवेज यूनिफॉर्म। Okay, so the constituent of the material should be uniform. इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मटेरियल की कंस्टिट्यूएंसी में कहीं इंक्रीज और कहीं डिक्रीज हो जाए और उसके चेंजेस होने लगे। तो दिस शुड नॉट बी चेंज, इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो दैट टाइप ऑफ द मटेरियल इज नोन एज योर होमोजीनियस मटेरियल। एंड व्हाट अबाउट आइसोट्रोपिक? अब देखिए क्या होगा, जब हमने कोई लोड अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इसके एप्लीकेशन होगा कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अगर हम 3 डायमेंशनल बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में, हर जगह पे इसके प्रॉपर्टीज जो होंगी वो चेंज होंगी।
ओके, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। तो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज should be uniform in all direction। है ना, इसको इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि जैसे आप सपोज करिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो वो एक्स डायरेक्शन में अलग वेरी कर रही है, वाई डायरेक्शन में अलग वेरी कर रही है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी यूनिफॉर्म स्टेडी, है ना। तो ये मटेरियल आइसोट्रोपिक मटेरियल हमारे कहलाएंगे। तो हम लोग हुक्स लॉ अप्लाई ही करते हैं, तो जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुक्स लॉ को जब हम लोग अप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, बट अप टू इलास्टिक लिमिट थोड़ा कर्व्ड लिए रहेगा, है ना। बट लेट अस अस्यूम दिस इज योर अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट P एंड दिस इज अप टू द इलास्टिक लिमिट E। दिस इज योर स्ट्रेस एंड दिस इज योर स्ट्रेन। But what we assume that up to the elastic limit the variation of stress is directly proportional to strain, means this curve is totally linear curve, means we assume that OE curve is linear, while in actual practice this curve is not actually linear. It is up to P point, means limit of proportionality it should be linear, but after that it is not linear, it has some curve, but we assume up to the elastic limit that the curve is linear. So this is also one of the assumption which we take while we apply the Hooke's law. Okay, so these are some conditions, some assumptions which we have to take care while solve the problems related to the Hooke's law. तो अब हम इन प्रॉब्लम्स को और हुक्स लॉ के कंडीशंस को अप्लाई करते हुए कुछ पर्टिकुलर केसेस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, कि वो केसेस क्या हैं। फर्स्ट है एलोंगेशन इन टेपर्ड बार। तो सपोज करते हैं कि दिस इज योर टेपर्ड बार एंड इट्स लेंथ इज, लेट अस अस्यूम ओरिजिनल लेंथ इज L एंड डायमीटर आर रिस्पेक्टिवली V, स्मॉल d एंड कैपिटल D। ठीक है, कैपिटल D हमारा बिगर डायमीटर है, स्मॉल d मेरा स्मॉलर डायमीटर है, और जो इनिशियल लेंथ है वो L है इस टेपर्ड बार की। एंड दिस टेपर्ड बार इज अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सटर्नल टेंसाइल लोड P। ओके, तो एज वी सी दैट sum of all the external forces on this tapered bar is 0 because this and this load will balance each other. So this tapered bar is under equilibrium condition, and since their line of action is same, so there is no moment is generation, so the moment is also 0. So that condition is very important. And now we have to find out कि under the application of this load P, how much the length will increase of this tapered bar. How to solve this question? So now let us assume we take a section at a distance of x and the diameter of this section is, let us assume, dx. Okay, and this section will represent something like this. This is the diameter of that section, that is dx, and let us assume that the thickness of this section is small dx. Okay, now see, in this section we have load in this direction. The one is, this is P, and here it is also P.
Okay, so this is the load acting on this section. So first of all, we have to find out the value of this diameter. What is the diameter of the section which we have taken at a distance of x from the smaller end area. तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको. तो इसका फिगर अगर हम लोग बनाएं, इट इज समथिंग लाइक दिस. वन साइड फिगर. तो ये लेंथ होगी d/2, क्योंकि हम लोग हाफ का बना रहे हैं, है ना. ये लाइन एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है मेरी. तो ये रेडियस हो जाएगा. तो ये दिस इज स्मॉल d/2 एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x I am taking this as a diameter. So dx/2, अब अगर हम लोग देखें तो dx/2, this is the dx/2, this length is dx/2, so this length. Okay, so this is dx/2 is nothing but it is d/2, means this length plus this length. फिगर से क्लियर हो रहा होगा. और ये लेंथ एक्चुअल में क्या है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज नथिंग बट इट इज x tan theta. If I am assuming this angle as theta, then this length will be nothing but it is x into tan theta, will give you the perpendicular. Okay, and how to calculate this length, this theta? If you see that this tan theta is nothing but it is d/2 minus this d/2 will give you this length. ये वाली लेंथ होगी. तो ये लेंथ कितनी है? d minus d/2, और ये टोटल लेंथ है मेरी l, तो बाई 2l. सो दिस इज d minus d/2 into l. तो दिस इज योर डायमीटर. So this diameter can be written as d/2 plus d minus d/2 को अगर हम लोग लैम्डा ले लेते हैं तो दिस इज लैम्डा x, where lambda I am assuming that it is d minus d/2l. So this is your diameter एट डिस्टेंस ऑफ x जो हमने लिया है. अब देखिए क्या होगा. एज पर द हुक्स लॉ, लेट स्मॉल वेरिएशन चेंज हो रहा है, दैट इज d ऑफ डेल्टा l. So this is nothing but P, that is applied load, into L. What is the length of that section? It's dx upon area, that is pi dx square by 4 into L. So what is the length of that section? PL upon AE, length is dx. सो ये फार्मूला हम लोग को मालूम है, d ऑफ डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई. ओके, सो d ऑफ डेल्टा एल, दिस इज डेल्टा एल इज द टोटल चेंज इन लेंथ, d इज द स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ द सेक्शन dx जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. तो दिस बिकम्स p अपॉन 4p अपॉन पाई ई इंटू dx अपॉन dx स्क्वायर. सो दिस dx अपॉन, एंड व्हाट इज दिस dx? तो dx स्क्वायर बाई 4 की अगर हम लोग सीधे सीधे वैल्यू ले लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी d/2 प्लस लैम्डा x होल स्क्वायर. आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग. ओके, नाउ तो वी हैव टू टेक द टोटल चेंज इन लेंथ. तो टोटल चेंज इन लेंथ विल बी नथिंग बट इट इज इंटीग्रेशन, एंड x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 to l लेंथ तक. सो टोटल चेंज इन लेंथ
P upon pi E, and what is the integration of this thing? तो इसका इंटीग्रेट हम लोग करेंगे 0 to L dx अपॉन d by 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x का होल स्क्वायर. दिस इज टोटल चेंज इन लाइन. नाउ अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो लेट d by 2 plus lambda times of x, let us assume this is t. So what is lambda dx will become dt. So dx can be replaced as dt upon lambda. ओके, अब हम लोग x पे लिमिट देख लेते हैं. तो when x टेंड टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो दिस शोज दैट t इज इक्वल टू d बाई 2, है ना. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू d बाई 2 हो जाएगी. एंड व्हेन x टेंड टू l, तो जब x की वैल्यू दिस इज t, x की वैल्यू l पे जाएगी तो t की वैल्यू कहाँ पे जाएगी आपकी? तो दिस विल बी इक्वल टू d बाई 2 प्लस लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा? d माइनस डी अपॉन 2l, ये हम लोगों ने लैम्डा माना था, इंटू x इज l. सो दिस शोज दैट t विल रीच 2. अब देखिए इसमें l से l कैंसिल हो जाएगा, d बाई 2 माइनस डी बाई 2 से ये d बाई 2 कैंसिल होगा, तो दिस बिकम्स कैपिटल d बाई 2. सो व्हाट इज डेल्टा l? तो डेल्टा l कम्स टू बी p अपॉन पाई e इंटीग्रेशन d बाई 2 to capital D by 2. Okay, what is dx? So this dx may be written as dt upon lambda, and this d by 2 plus इसको हमने t माना था, तो this is dt upon t square. तो अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, एंड dt अपॉन टी स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन टी. सो वी कैन राइट इट एज p बाई पाई ई लैम्डा इंटू माइनस का 1 अपॉन टी फ्रॉम स्मॉल d बाई 2 टू कैपिटल D बाई 2. नाउ पुटिंग द वैल्यूज इज, तो p अपॉन पाई ई लैम्डा इज नथिंग बट इट इज कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2l इंटू माइनस 1 अपॉन t is d by 2 minus minus plus 1 upon d by 2. So this delta L comes to be 2pl upon pi e d minus d. अब इसमें देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन डी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एंड दिस बिकम्स 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी. तो दिस बिकम्स 4pl अपॉन पाई ई. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज d माइनस डी, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा d इंटू कैपिटल D. तो दिस इज द टोटल चेंज इन लेंथ अंडर इन टेपर्ड बार व्हेन अ लोड p इज बीइंग अप्लाइड टू दिस थिंग, है ना. अब इसी से हम लोग देखें कि इफ स्मॉल d की वैल्यू कैपिटल D के इक्वल हो जाए तो क्या होगा उस केस में. जब हमारा स्मॉल d कैपिटल D दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो बार टेपर्ड है, ये टेपर्ड ना होकर ये एक यूनिफॉर्म रॉड हो जाएगी, है ना. देन टेपर्ड बार विल convert into uniform rod. Okay, so now then what will be delta L for uniform rod? So this becomes 4pl upon pi e, and this d and d, that becomes a d square. So this can be written as pl upon e into pi d square upon 4. This we can write it in this way, and pi d square upon 4 is nothing but it is the area of cross section of that uniform rod. So this becomes pl upon ae. Okay, so this is your change in length due to the application of load p. So this formula is very important
and in so many times in GATE examination direct formula can be used to solve the objective type of the problems. So the value of the change in length in the tapered bar is 4PL upon pi e into small d into capital D, small d and capital D. Always remember this is D and D, है ना. नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग करते हैं कि चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस. नेक्स्ट इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट. देखते हैं इसमें क्या होगा. हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, इनिशियल लेंथ इसका एल है और मटेरियल की डेंसिटी लेट अस एज्यूम दैट रो है. तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. ओके, अब सिंस अब ये इस मटेरियल की डेंसिटी है ऑब्वियसली, तो इस मटेरियल का वेट होगा तो द वेट विल एक्ट डाउनवर्ड. सो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इट्स ओन वेट दैट इज द सेल्फ वेट, हाउ मच इलॉन्गेशन विल टेक्स प्लेस. तो ये हमको कैलकुलेट करना है कि अगर हम किसी पार्ट को हैंग कर दे किसी से, सपोज करिए ये, और इसका अपना लोड होगा, तो क्या होगा कि ये अपने ही लोड से थोड़ा सा एलोंगेट करेगी. तो ये कितना एलोंगेट करेगी, दैट एलोंगेशन वी हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. So, what is the total weight of the bar? What is the total weight? That is nothing but it is the volume into density. And what is the volume of that bar? If area cross sectional is A and L is the length, then the volume will be A into L. Density is rho, and obviously since we are calculating the weight, so G is there, volume density into G also. So total weight of this bar is A L rho G. So this is the total weight of this bar. Okay, now let us assume that at a distance of x from the bottom end, we have taken a small section delta x. ओके, तो अब देखते हैं इस स्मॉल सेक्शन dx पे क्या होगा. ऑब्वियसली ये स्मॉल सेक्शन dx है, इस dx पे टेंसाइल लोड एक्ट करेगा जो wx होगा. व्हाट इज दिस wx? एंड इसको बैलेंस करेगा अपवर्ड लोड से. तो व्हाट इज दिस wx? wx इज नथिंग बट इट इज द वेट अप टू द लेंथ x. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू एक्स, दैट इज दिस विल बी द वॉल्यूम अप टू द लेंथ x ब्लॉक तक की. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम जो होगा a इंटू एक्स, रो डेंसिटी और g है. तो दिस इज द टोटल टेंसाइल लोड विच इज एक्टिंग ऑन दिस मेंबर हैविंग द थिकनेस dx. So what should be the total change in length due to the application of this load wx on this bar? So change in length of this section dx under its own weight is, let us assume this is d of delta L, a small change. So what is this? This is wx p L. What is the length? Length of that section is dx upon a. Cross sectional area is always remains constant.
and E is a constant. So this is Wx upon A into E into dx. Okay. So we have to calculate the total. So first put the value of Wx. So what is Wx? A rho g x dx upon AE. So d of delta L, this comes out to be rho g upon E into x dx. So if you have to calculate the total change in length, or total elongation into the bar due to self weight. So this total elongation delta L is nothing but it is integration rho g upon E x dx from 0 to L. So what this value becomes? This is becomes rho g upon 2E into x square by 2. तो ये 2 हो गया, x स्क्वायर को हमारा हो जाएगा L स्क्वायर. ओके, तो अब इसको हम लोग डेल्टा L निकालें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A रो जी L इंटू एल. एल स्क्वायर को मैंने L इंटू एल कर दिया, A से मल्टीप्लाई किया तो A से डिवाइड भी कर देंगे 2AE. What is A rho GL? This is nothing but it is the total weight of the material. So this becomes WL upon 2AE. So this is the total elongation into the bar due to its self weight. So this formula is also very important. Total elongation due to self weight, है ना. और ये हम लोग हमेशा एज्यूम कर रखें कि जो E के वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट है, ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है ना. और जो मैंने कि आपको हुक्स लॉ के इनिशियल में ये बताया था कि जब भी हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई कर रहे होंगे तो उस समय हम लोग मान लेते हैं कि मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोट्रोपिक हैं, है ना, कर्व लीनियर है और प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो हमेशा कांस्टेंट होंगी. ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट नहीं होंगी तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये E का वेरिएशन अगर सपोज करिए लेंथ के साथ हो रहा होगा तो एट दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर द वेरिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू x और फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, है ना. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दिस इज द टोटल चेंज इन लेंथ ड्यू टू द सेल्फ वेट, ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल, है ना. ओके, तो नाउ सी one problem related to elongation due to self weight and question has been asked in one of the competitive exam. ये एक टेपर्ड बार है और इस पे एक यूनिफॉर्म बार है. ओके, और इस पे एक ये P लोड अप्लाई किया गया है. सपोज करिए यहाँ का डायमीटर D1 है और ये डायमीटर D2 दे रखा है. लेंथ दोनों की दे रखी है L, सेम लेंथ L एंड L, and both of these are of the same material and you have been asked to find out the total increase in the length of this bar or the displacement of the point A. So the displacement of the point A is what? The total displacement. So what is the total displacement? So displacement of point A is nothing but it is change in length for tapered bar plus change in length for this uniform bar, for uniform rod. Okay, so what is the change in length for the tapered bar? We have already proved it that it is 4PL upon pi E D1 D2. This is the change in length in tapered bar. So because of this tapered, total displacement and the total displacement due to this uniform is nothing but it is
पी एल अपॉन ए, तो व्हाट इज ए, पाई डी टू स्क्वायर बाई 4 into E. So this is the total change in length or the total displacement of the point A under the action of the load P. So this question was asked in GATE examination. Okay, so this type of the question will be asked, so you have to directly use the formula and get the answer. Now again we are going to discuss the variation in area when the stress is uniform. Okay, the variation of area when stress is uniform. So now in the my lecture series, I am just first I am give you the detailed analysis of the different theories, कि how the question will be attempted to the different problems, and then finally we will solve some problems related to the whatever with the theory I have covered under this section. Okay, and throughout the entire lecture series of the strength of material, I will do in the same fashion that first I will clear all the theoretical part, how the problems will be solved, how to attempt the problems, and finally I will try to solve some problems so that you are able to solve the problems. And after my video lecture, I will give some questions into my link so that you can go through the questions and solve those problems. If you find any difficulty in solving those problems, you can directly contact me and you can ask it, or you can put the comment into the comment box so that I can give the answer to you people. Okay. So now the variation of the area when the stress is uniform. तो इसमें क्या है, अब देखिए स्ट्रेस मेरा यूनिफॉर्म है और हमने मान लिया कि कोई एक बीम है और वो इस तरीके से now the area is varying and the stress is uniform. So suppose here the area is A1 and at a length of L the area of the beam is A2, and at a distance of y from x from the free end or y from the free end, let us assume that x, I am taking a small section dx. This length is your x and this small section is dx. So if we draw the free body diagram of this dx, then what will happen? Obviously, since the stress in this bar is uniform, so this is sigma, and let here the area at a distance of x, the area is a and the very increment in the area is a plus dA. So here the area is a plus dA, where dA is the increase in the area. So sigma A will be the total tensile load acting downward, and upward direction the stress will be sigma A plus dA, where sigma is the stress which is uniform. Now this bar having the density of the material is, let us assume that A, then what is the mass acting on this? So the area is your A, length is x, so it is rho A x g. So this is your total weight acting on this particular part. So by making the balancing of equation, sigma A plus rho A x g is nothing but it is sigma A plus dA.
I'm sorry, it is sigma A. Since its length is dx, so this volume will be A dx. So please make it is A dx. I am writing A dx because I am considering this stress. So here the area is A and its thickness is dx. So the volume of this strip will be A dx. So its weight will be rho A dx into G. Okay, so sigma A plus rho A G dx is nothing but it is sigma A plus sigma times of dA. This sigma A will cancel out. So rho G dx is equal to sigma dA over A, or we can write that dA over A is equal to rho G divided by sigma into dx. Not integrating, since density of the material, acceleration due to gravity and stress is uniform, so I am just taking it out of the integration. So at a distance of x is equal to 0 means at the free end let the wall area is A1, and at any instant of time, any instant of distance, sorry, it is x, so its area is dA. So what is the integration of dA over A? This is nothing but it is ln of A over A1, and this value is equal to rho G by sigma into x, or area will be nothing but it is A1 e की power rho G by sigma x. And when x is equal to L means at total length, let area is A2, then A2 will be equal to A1 into e की power rho G by sigma L. So this is the variation of area with respect to your stress. This is your stress. Okay, so this is the total variation in the strength area with respect to your stress. So this is your exponential rises there. Okay, so the area will increasing exponentially. That's why we have taken the area something like this, which is an exponential curve of area with respect to stress. Okay, so this so many times the questions based on this particular article have been asked in engineering services examination, also in GATE examination. So you just solve by putting the direct values of these two. Okay, now come to the next article. In the next article we are going to discuss the composite section, change in length of the composite section. Or bar of uniform and varying, uniform and varying area. So in this section, suppose you have been given that you have a bar and this is of, let us assume this is a bar of varying area. Let us assume that it has not been basically fixed. I am just applying the load over this. Okay. And let a load P is acting on this particular bar of varying cross section area. Let its area of cross section be A1, modulus of elasticity is E1, and the length of this section L1. This is A2, E2 and L2, and this section having area A3, modulus of elasticity E3, and load is L3. Okay. So what will happen? Let this point will be A, B, C and D.
So first of all, for this type of the question, always draw the free body diagram for each and every section. Okay, so now I am just going to draw the free body diagram. This is my AB section, then we have BC section, and this is our CD section. So now since a load P is applied at the point D outward direction, so I am just applying a load P, and this portion has to be under equilibrium condition, so a load P will be here. This point is C and this is D, this is C, this is B, this is B, and E. Okay, and as for in the given figure, the net load acting at the point C is 0. So when we combined these two sections of C, the net load has to be equal to 0, and here since P is acting in the leftward direction, then obviously here this P should be in a rightward direction. So when we combine these two C, then the cancellation of this force will occur over at the point C, and the net load at the point C should be 0. Now once we see the section BC, so our load P is acting outward direction, and since we have to balance this part, because we have already told you that each and every section should be under equilibrium condition. So when a load P is acting here, so a tensile load at point B will be there. And similarly, as in case of C, the net load at point B is 0, so here a rightward load has to be met, and this should be balanced with load at point A, and which has already been given in the question. Okay, so we have seen that in each and every section a tensile load P is transferring in such a manner. So that's why I am telling you that whenever this type of the question comes, you always draw the free body diagram of each and every section, so that we are able to understand how much load and what type of the load is basically acting on a particular member. So what is the stresses in each part? So stresses in part AB, let this part be 1, this part is 2, and this is our part number 3, and all the values will be given in the terms of 1, 2 and 3 suffix. So stress in part 1 is sigma 1, and what is this sigma 1 is equal to P upon A1. Similarly, stress in part 2 is sigma 2, and this sigma 2 is nothing but it is P over A2, and stress in part 3 is sigma 3, and this sigma 3 is nothing but it is P by A3. And since all the loads are tensile in nature, so all the stresses will be tensile. So I am just writing T, T, T. This T signifies that all the stresses developed into the different section are tensile in nature. And since the stresses are tensile in nature, then total change in length, obviously there is a tensile load, then the length will increase. So change in length for part 1, change in length or increase in length, change in length or increase in length, whatever you want to say, of part 1 is delta L1, and what is this delta L1? P L1 upon A1 E1, change in length of part 2, and how much change in length in part 2? Delta L2, that is, since total load is P, L2 is the area length, A2 is its area, and E2 is its elastic constant. And what is the change in length of part 3? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? That becomes delta L3, and this value is nothing but it is PL3 upon A3 E3. So what is the total change in length of this system? Total change in length delta L will be nothing but it is delta L1. Since all the values are tensile in nature, means the delta L is positive, so net change will be
summation of all these three. So we add all, so this P, and this is L1 upon A1 E1 plus L2 upon A2 E2 plus L3 upon A3 E3. Okay, so by this we can calculate the total change in length. So in this type of the problem, always make sure that if you are able to draw the free body diagram of each and every section, then you can solve the problem in a very easy way, and there is no chance of any mistake. ओके, सो ये ध्यान देना है हम लोगों को कि हर सेक्शन का हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में. सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स. जैसे सपोज कर लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, लेट अस अज्यूम कि हमने क्वेश्चन ले लिया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है ना, उसका एरिया मान लेते हैं हम लोग ए है, और इसके 3 अलग अलग अपन सेक्शन ले लेते हैं. लेट इसकी लेंथ है L1, इस सेक्शन की लेंथ है L2, इस सेक्शन की लेंथ है L3. यहाँ पे लोड लग रहा है मेरा P, इस पोर्शन पे लोड हमारा मान लीजिए लग रहा है P1, और इस सेक्शन पे मैंने मान लिया कि लोड हमारा P2 लग रहा है. और ये फिगर आपको दिया गया है. और एक और कर लेते हैं, इसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं. लेट अस अज्यूम दिस पोर्शन हैज बीन फिक्स्ड. A, B, C, D. ओके, नाउ मान लेते हैं कि चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, और करस्पॉन्डिंगली इलास्टिसिटी विल बी E1, E2 एंड हियर इट इज E3. मतलब डिफरेंट मटेरियल के हैं. तो नाउ ही कैन आस्क यू कि फाइंड आउट द व्हाट आर द स्ट्रेसेस डेवलप इन एवरी सेक्शन, और व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट D with respect to A. Since A is fixed, so its displacement will be 0. What is the displacement of point B with respect to A? What is the displacement of point C with respect to point A? So this type of the question can be asked. So how to solve this question? So just see it. So what I have told कि just first make the free body diagram. So I am just going to draw the free body diagram. ओके, तो एक तो फ्री बॉडी डायग्राम अपन बना लेते हैं सबसे पहले. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप हमेशा याद रखिए कि हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जैसे ही आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाती हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम. अब इसमें हमको दिया गया है कि सेक्शन डी पे आउटवर्ड डायरेक्शन पे एक लोड P एक्ट कर रहा है. तो ये P तो एक्ट करेगा ही करेगा. पॉइंट D है, दिस इज C, दिस पॉइंट इज CB, एंड हियर इट इज B एंड A. ठीक है, पॉइंट D पे एक P लोड एक्ट कर रहा. अब CD सेक्शन को चूंकि इक्विलिब्रियम पे होना है, तो यहाँ पे एक P लोड एक्ट करेगा ही करेगा. अब अगर हम दोनों C को कंबाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि फिगर में एक P1 लोड आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे कितना लोड होना चाहिए? दिस लोड शुड बी P1. अब इसको और इसको अपन मिलाएंगे तो यहाँ पे इस लोड का इफेक्ट प्लस P, क्योंकि ये P होगा डाउनवर्ड राइटवर्ड, ये P होगा लेफ्टवर्ड. जब हम मैच कराएंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो ये दोनों P एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे एंड नेट लोड विल बी P1. तो मेक श्योर यहाँ पे P1 माइनस P नहीं कर देना, क्योंकि माइनस P करेंगे तो ये डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगी. फिर तब सेम डायरेक्शन में होगी, तब ये P कैंसिल आउट होंगे, है ना. तो अगर हम इन दोनों लोड को ऐड करेंगे देन द लोड विल बी P1. तो अब BC सेक्शन को हमको चूंकि इक्विलिब्रियम में होना है, तो यहाँ पे भी एक लोड आउटवर्ड डायरेक्शन में P1 प्लस P एक्ट करेगा. अब हमको कह रहा है कि B पॉइंट पे एक लोड P2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो हमने इस पे यहाँ पे लोड दे दिया P2, ये लोड है P2, और उसमें इस वाले सेक्शन को पूरे लोड को हम सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस P1 प्लस P.
तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये P1 प्लस पी इस P1 प्लस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक नेट लोड P2 एक्ट करेगा और यही लोड इसको यहाँ पे कॉम्प्रेस करेगा साइड ए से। तो दिस लोड इज नथिंग बट इट इज P2 माइनस P1 प्लस पी। ओके, ये हो जाएगा। यानी कि अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिएक्शन एट द पॉइंट ए। तो रिएक्शन एट पॉइंट ए इज दिस थिंग। तो रिएक्शन at point A is equal to your P2 minus P1 plus P. Okay, if you calculate these values, suppose आपको कोई numeric value दी गए होंगे, तो once you put the numeric value and if the value is negative, suppose, then what will happen? It means that the direction whatever we have taken, as in our question I have taken it is in a compressive mode, so the direction will be reversed, तो ये टेंसाइल हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मेरा जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है यही होगा। तो यू आर फ्री टू टेक एनी एजम्पशन, है ना। डायरेक्शन के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं, बस वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस साइन के साथ आएगी। अगर निगेटिव साइन आएगी तो जो डायरेक्शन हमने ली है उसके अपोजिट हो जाएगा, अगर यही पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मेरी सेम डायरेक्शन होगी। ओके, तो नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। अब इसमें हमको करना क्या है, अब हमको जैसे सपोज करिए स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज द स्ट्रेस एट सेक्शन ए बी। तो सेक्शन ए बी में स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा ए बी। व्हाट इज द स्ट्रेस इन दिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज द टोटल लोड इज दिस वन। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, सो स्ट्रेस इज P2 माइनस P1 plus P divided by the cross sectional area A, and this load is compressive in nature, so the stress will be compressive. Similarly, stress in section BC, तो BC सेक्शन में मेरा स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो BC सेक्शन पे टोटल लोड, तो व्हाट इज द टोटल लोड एक्टिंग इन BC सेक्शन, दैट इज नथिंग बट इट इज P1 plus P and area is A. So it is the total stress developed into the section BC and it is tensile in nature, so the stress is tensile. Similarly, stress in CD section, so what is the stress in CD section, this is nothing but it is P upon A and this is also tensile in nature. Now what is the total change in length of CD, total change in length of BC and total change in length of AB. Okay, so change in length of CD, let delta L CD, so this is PL1, it is L1 or L2, L3, क्या हम लोगों ने लेंथ मानी थी L3, तो PL3 अपॉन एरिया इज सेम एंड इट इज 3, सो PL3 अपॉन AE3. सिमिलरली चेंज इन लेंथ ऑफ BC सेक्शन, तो दैट इज डेल्टा L BC सेक्शन. तो व्हाट इज द टोटल लोड इज P1 प्लस P, सो P1 प्लस P इंटू L2 upon AE2, and these two will be positive because the stress is tensile in nature. Now the change in length of AB section, so it is delta L AB and this is compressive. So if it is compressive then total change is P1 minus P1 plus P into L1 upon AE1. ओके, सो अब देखिए क्या होगा फिगर के अकॉर्डिंगली। ये पोर्शन मेरा राइटवर्ड जाएगा, ये सेक्शन मेरा राइटवर्ड आगे जाएगा और ये सेक्शन मेरा लेफ्टवर्ड जाएगा, ये कॉम्प्रेस कर जाएगा। तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या होगी, दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस, सो तो दिस प्लस दिस माइनस ऑफ दिस, क्योंकि ये इसको कॉम्प्रेस करके थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आएगा। ओके, सो टोटल चेंज इन लेंथ
एल्जेब्रिक अगर हम लोग सम ले लेंगे तो दिस प्लस दिस, और ये वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगी क्योंकि ये चेंज इन लेंथ कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से निगेटिव आ जाएगा। सो टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी। These two will be positive and this will be negative. This will be negative and these two will be positive. So make sure while putting the value, this has to be negative and these two values will be positive because these are your tensile and this is compressive. And suppose if this also becomes negative, तो minus and minus, तो then will make positive. Okay? तो ये नेगेटिव वैल्यू के साथ हमको रखना है। क्यों नेगेटिव वैल्यू के साथ रखना है? क्योंकि ये हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, तो इससे हमारी लेंथ जो होगी वो कॉम्प्रेस कर रही होगी, तो कॉम्प्रेस करेगी यानी वो लेंथ को कम कर देगी। ओके, तो दिस वैल्यू हैज़ टू बी नेगेटिव, पुट द वैल्यू इनटू द नेगेटिव फॉर्म, है ना। या दूसरे सेंस में हम इसको कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए तो टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो जैसे भी वैल्यू आएगी हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी माइनस डेल्टा एल ए बी and take its modulus value. This modulus value means we take the absolute value of this and then subtract it with, because it is compressive, है ना। और ये अगर टेंसाइल हो जाएगा तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। अगर टेंसाइल है तो हम एड अप करेंगे, अगर कॉम्प्रेसिव है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि वो लेंथ को कम करेगा। तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन दिस मैनर। ओके, सपोज इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था गेट के एग्ज़ाम में, अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज़ आवर एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस अज्यूम कि दिस इज़ योर एग्जाम्पल 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल 2। कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस पे एक लोड P लग रहा है। दिस इज़ ए बी सी और ए बी सेक्शन की लेंथ है 2L/3 वाइल बी सी सेक्शन हैज़ द लेंथ ऑफ L/3। ओके, और ये रॉड जो है ये ए एंड सी साइड से फिक्स है। Modulus of elasticity and area of cross sectional of this bar will be same. That is, modulus of elasticity for AB section and for BC section is same, means they both are of the same material. So they have asked in the question that what is the stress, what is the reaction at point A and at point C, and also find the stresses in AB section and in BC section. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। सोल्यूशन, this is our AB section and this is our BC section। हमने मान लिया C पे कोई भी एक रिएक्शन RC एक्ट कर रहा है, तो C पे अगर RC एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए पॉइंट B पे भी RC फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन हम जब इन दोनों फोर्सेस को कंबाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पे एक P लोड एक्ट कर रहा है जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक राइटवर्ड डायरेक्शन पे P फोर्स होगा और ये इसको बैलेंस करना होगा, तो P प्लस RC। ओके, सो व्हाट इज़ द टोटल लोड एक्टिंग ओवर हियर, दैट इज़ P प्लस RC। सो रिएक्शन एट पॉइंट A is nothing but it is P plus RC and RC is the reaction at point C. And since the rod is fixed from both the ends and net change in length will be equal to 0, so change in length इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या चेंज इन लेंथ आया है, क्योंकि दोनों टेंसाइल इन नेचर हैं तो डेल्टा एल ए बी, सिंस दोनों टेंसाइल हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस डेल्टा एल बी सी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर इसी में कोई एक लोड कॉम्प्रेसिव होता तो फिर ये माइनस साइन के साथ आ जाता, क्योंकि कॉम्प्रेसिव में हमारी लेंथ
कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए माइंड में। सो व्हाट इज चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज पी प्लस आर सी, पी एल, व्हाट इज द लेंथ, दिस इज 2l अपॉन 3 अपॉन ए ई प्लस इस पे लोड है आर सी इंटू एल बाई 3, तो पी एल अपॉन ए ई, दिस शुड बी 0। ये हम लोग ऑलरेडी फार्मूला डिराइव कर चुके हैं फ्रॉम द हुक्स लॉ, दैट पी नेट चेंज इन लेंथ विल बी पी एल अपॉन ए ई। तो हम लोग अगर इसमें से एल अपॉन ए ई 3 ए ई से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम्स 2p प्लस 2rc प्लस rc is equal to 0. So this says that rc, that becomes 3rc, that becomes minus 2p by 3. So this negative sign, what this negative sign shows? This negative sign shows that this load is compressive in nature. Okay, so rc value is minus 2p by 3. So what is the reaction at point A? So reaction at point C is RC and this is 2p by 3 compressive in nature. Okay, so this load will be compressive in nature. Similarly, see reaction at point A is RA, और what is RA? P plus RC, और RC की वैल्यू माइनस 2p बाई 3, तो P माइनस 2p बाई 3, तो इट मीन्स RA बिकम्स टू बी P बाई 3, और चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स रिएक्शन एट पॉइंट A विल बी टेंसाइल। तो अब जो मेरा फिगर होगा वो फिगर समथिंग लाइक दिस है। अगर हम लोग इसका फाइनल फिगर ड्रॉ करें तो फाइनल फिगर हमारा ये कहता है कि इस जगह पे एक रिएक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज़ 2p बाई 3 का, ये पॉइंट है C, B, here it is B and here it is A। तो इसको बैलेंस करेगा यहाँ पे 2p बाई 3 का, और ये रिएक्टिव फोर्स है p बाई 3, और इस पे एक रिएक्टिव फोर्स है p बाई 3 का। अब अगर हम लोग इस जगह पे नेट लोड देखें तो ये नेट लोड कितना हो जाएगा, हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों देखिए कंबाइंड होके बन जाएंगे p, और ये P राइटवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ये नेट लोड होगा P, है ना, B सेक्शन को मिला रहे हैं। तो हमने देखा कि ये P लोड जो हमको है ये राइटवर्ड डायरेक्शन पे दिया गया है पॉइंट B पे, जो कि हमारा कैलकुलेशन से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नाउ सपोज यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द स्ट्रेसेस इन AB एंड BC, तो स्ट्रेस इन सेक्शन AB कितना स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज P अपॉन A, दिस इज टेंसाइल इन नेचर, and stress in section BC, this is nothing but 2p upon 3, तो 2p upon 3a, and this is compressive in nature. So this question was asked in GATE examination. Obviously they have put in the value p की, उन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी थी, तो आप उस p की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो you will get the reaction as well as the value of the stresses. He can also ask you कि what is the total displacement of the point B, तो what is the total displacement of point B विद रिस्पेक्ट टू A, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, ये राइटवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा और ये भी आपका कॉम्प्रेस करेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज दिस प्लस दिस लेंथ। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। भाई ये लोड लगेगा तो ये B सेक्शन मूव इधर की तरफ मूव करेगा, और ये इसको चूँकि कॉम्प्रेस कर रहा तो B सेक्शन और मूव कर जाएगा, तो ये टोटल B जो होगा विद रिस्पेक्ट टू A ये होगा आपका इंक्रीज। अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट C, तो ये इसको इस साइड आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है, तो दोनों टोटल लेंथ से उतना कॉम्प्रेस कर जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि आपको विद रिस्पेक्ट टू किस पॉइंट पूछा जा रहा है, तो यू कैन इजली कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, नाउ हम लोग एक और आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें सपोज कर लीजिए कि हमारा कोई कंबाइंड सिस्टम है, जिसमें कि रॉड एंड ट्यूब का एक कंबाइंड सिस्टम है, और उस पर हम लोग कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इनटू द रॉड एज वेल एज इनटू द ट्यूब, हॉलो ट्यूब। ओके, तो
कंबाइंड असेंबली ऑफ रॉड एंड ट्यूब। तो सपोज कर लीजिए कि वी हैव ए दिस इज अवर ट्यूब, ये मेरा ट्यूब है। थोड़ा सा फिगर ठीक से समझ लीजिएगा आप लोग। ये एक ट्यूब है, ठीक है ना, यस कर दे रहा हूँ मैं। तो दिस रिप्रेजेंट योर ट्यूब, और इस ट्यूब का हमको इनर एंड आउटर डायामीटर दे दिया गया है। तो लेट अस एज्यूम इस ट्यूब का आउटर डायामीटर है डी नॉट, और इसी ट्यूब का इनर डायामीटर है डी आई, इज द इनर डायामीटर ऑफ ट्यूब। और इस ट्यूब में एक सॉलिड रॉड इंसर्ट करी गई है। दिस इज द सॉलिड रॉड इंसर्टेड इनटू द ट्यूब, and the diameter of that solid rod is nothing but it is d, and this d, that is the rod of solid rod को मान लो अपन dr रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, rod dr, that is dia of rod। ओके, एंड d नॉट एंड di क्या क्या है? d नॉट एंड di is respectively outer and inner diameter of outer and inner dia of tube, ठीक है। अब इस असेंबली में हमने मान लिया कि एक P का टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है। P यूनिट का टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है। तो अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दिस असेंबली, व्हाट आर द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इनटू द ट्यूब एंड रॉड। ओके, तो क्वेश्चन क्या क्या इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट पूछा जा सकता है स्ट्रेसेस इन ट्यूब एंड रॉड, सेकेंड आपसे पूछा जा सकता है टोटल चेंज इन लेंथ, ओके। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली जो हमारा मटेरियल है जैसे ट्यूब है, तो लेट अस अज्यूम दैट कि ट्यूब की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई टी ले रहे हैं, और रॉड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन ई आर ले रहे हैं। आर सफिक्स मतलब है रॉड के लिए एंड टी सफिक्स है हमारा ट्यूब के लिए। और जैसा कि हम लोग हुक्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लोग मान के चलते हैं कि मटेरियल जो है वो मेरा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, और पी का एक टेंसाइल लोड लगा हुआ है। तो अब इसका देखिए सबसे पहला हम लोग ने क्या करना है कि सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो नाउ लेट अस अस्यूम जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस रॉड एज वेल एज फॉर द ट्यूब। तो पहले हम लोग ट्यूब बना लेते हैं। ये मेरा ट्यूब है, इसकी इनर एंड आउटर डाया आपको दी गई है ट्यूब की। दिस इज योर ट्यूब, ओके। ट्यूब, इसकी इनर डायामीटर है डी आई एंड आउटर डायामीटर है डी नॉट। और यहाँ पे हमने बना लिया है एक रॉड जो कि सॉलिड रॉड है, और इस सॉलिड रॉड की जो डाया है वो है डी आर। डी आर इज द डाया ऑफ द रॉड।
ओके, लेंथ इज सेम फॉर बोथ। अब चूंकि पी लोड टेंसाइल टोटल पी लोड हमारा एक्ट कर रहा है, जो कि पूरा लोड किस पे, असेंबली पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये पी लोड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ट्यूब में एज वेल एज इन रॉड में। तो लेट अस एज्यूम जो ट्यूब में जो है वो हमने मान लिया कि पी टी लोड एक्ट कर रहा है इन अ टेंसाइल मैनर, और रॉड में जो एक्ट कर रहा है वो भी टोटल टेंसाइल लोड है, दैट इज पी आर, ये रॉड में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये पैरेलल सिस्टम है, दिस इज नॉट योर सीरीज सिस्टम कि आप इन दोनों को ऐड कर दें। ये वाला सेक्शन जो है वो इस सेक्शन से मैच करेगा और ये वाला सेक्शन इस सेक्शन से मैच करेगा। ओके, सो द टोटल लोड विल बी पी टी प्लस पी आर एंड दिस इज इक्वल टू पी। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी होगी पी टी, तो लोड बैलेंस इक्वेशन, लोड बैलेंसिंग, तो लोड बैलेंस कैसे करेगा, ट्यूब में टेंसाइल लोड प्लस रॉड में टेंसाइल लोड, दिस टेंसाइल लोड इज इक्वल टू टोटल लोड गिवन, है ना, पहली चीज। और दूसरी, चूंकि अब हमारा सिस्टम जो है वो एक असेंबली है और इस असेंबली पे हम लोग एक पी लोड से अब उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चूंकि हमारा यहाँ पे ये दोनों फिक्स हैं, इस एंड पे फिक्स इन द सेंस कि रॉड एंड ट्यूब एक साथ साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो जितनी चेंज इन लेंथ रॉड में होगी तो द सेम चेंज इन लेंथ विल बी इन ट्यूब। सो चेंज इन लेंथ, change in length of rod must be equal to change in length of tube। सो कितनी होगी चेंज इन लेंथ, रॉड में कितनी चेंज इन लेंथ होगी, रॉड में हमारा लोड लग रहा है पी आर, तो दिस इज पी आर इंटू एल अपॉन ए आर ई आर, where AR, ER respectively the area of rod and E is the modulus of elasticity of rod। और ट्यूब में कितना चेंज इन लेंथ होगा, दिस इज PT into L because the initial length of both the rod and tube is same divided by AT ET। Now how to calculate AT, तो AT is nothing but it is the cross sectional area of tube, तो this is pi d नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर बाई 4, है ना, दिस इज द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब एंड वाइल ए आर, सो ए आर इज नथिंग बट इट इज पाई बाई 4 डी आर स्क्वायर, वेयर दीज डायमीटर्स विल बी गिवन एंड वी नो ऑल दीज वैल्यूज एज। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन सॉल्व द इक्वेशन फॉर पी आर एंड पी टी। तो अब इसमें हम लोग पी आर को इन टर्म्स ऑफ ई टी कैलकुलेट कर लें अगर, तो सपोज तो पी किसी एक को निकाल लेते हैं, लेट अस अज्यूम पी आर, तो पी आर बिकम्स पी टी टाइम्स ए आर ई आर अपॉन ए टी ई टी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी आर इन टू इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा हमारा पी टी प्लस पी आर, तो पी आर इज पी टी टाइम्स ए आर ई आर अपॉन ए टी ई टी एंड दिस becomes P। So if you have to calculate P of tube, so this is P into AT ET divided by AR ER plus AT ET। ओके, तो दिस इज द टोटल स्ट्रेस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PT की वैल्यू जो होगी वो P डिवाइडेड बाय AR ER। देखिए अभी हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर इस तरह की असेंबली आती है AT ET, ये वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लें P अपॉन AR ER प्लस ET AT, और उसमें फिर जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज AT ET। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टोटल लोड इन ट्यूब। ओके, तो हाउ मच दिस लोड, फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच लोड ऑफ दिस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो दिस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन दिस वे।
Similarly, we can calculate the value of total load into the rod. So this becomes now P by इस वैल्यू को फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लें ARER plus ATET and this should be multiplied by ARER. So this is the total load into the rod. Okay. Now, since we are able to calculate the value of the force into the tube as well as into the rod simultaneously, so we can easily calculate the stresses also. So what is the stress in tube? That is PT upon AT, and what is the stress in rod? That is PR upon AR. So stress in tube sigma T, this is nothing but PT upon AT, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P अपॉन ARER प्लस ATET multiplied by ET. Similarly, stress in rod, that is sigma R, this comes to be PR upon AR, and this value is P upon ARER plus ATET multiplied by ER. तो by this we can calculate the value of the stresses. तो अब हमको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो we need not to calculate all these values, as you just calculate P total load, okay, total load divided by this value ARER plus ATET, all the areas will be calculated, E की वैल्यू हमको दी रहेगी, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लें और फिर इस फ्रैक्शन में हम लोग जिस भी, जैसे ट्यूब का निकालना है तो उसमें उसके इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, रॉड के लिए निकालना है तो उसके इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इन ट्यूब एज वेल एज इन द रॉड. अब अगर सपोज कर लीजिए यही लोड कॉम्प्रेसिव होता तो ये P हमारा, ये सिग्मा T और सिग्मा R ये दोनों हमारे कॉम्प्रेसिव वैल्यू हो जाते हैं. और टोटल नेट चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? तो नेट चेंज इन लेंथ क्या होगा? सिग्मा T अपॉन ET या सिग्मा R अपॉन ER, कोई भी एक चीज़ कर लेंगे. दिस विल बी द स्ट्रेन डेवलप्ड इनटू द आइदर इन ट्यूब और इन रॉड, और दोनों में ये सेम होंगी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? ये वैल्यू कैलकुलेट करने से और L में मल्टीप्लाई करते हैं. तो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड और ट्यूब, तो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड और ट्यूब, क्योंकि ये दोनों में सेम होगा, तो ये वैल्यू जो होगी वो P अपॉन ARER प्लस ATET multiplied by L, where L is the total initial length. So by this formula we can easily calculate the value of change in length of the rod or in tube. Okay, so in our next lecture we will discuss some more problem. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? एप्लीकेशन पार्ट देखा हुक्स लॉ का, और ये हुक्स लॉ का एप्लीकेशन से हमने कुछ फार्मूलेस को डेराइव किए कि ये वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला, है ना. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है तो हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम कन्वेंशनल, तो उसमें हम लोग को किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको ईजिली डिराइव कर सकते हैं और देन यू कैन पुट द वैल्यूज एज, बट ट्राई टू लर्न दिस फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला देखिए बहुत आसान है. सिर्फ हमको इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है और हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें तो वी कैन ईजिली गेट द आंसर इन अ वेरी फास्ट मैनर. तो यू नीड नॉट टू सॉल्व ऑल दिस प्रोसीजर, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला. ओके, तो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर तो वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम इन द सेम फैशन. हम कुछ और फार्मूले को डेराइव करेंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा फॉर सॉल्विंग. जैसे हम लोग नट बोल्ट की प्रॉब्लम को करेंगे, हम लोग अभी वायर्स की प्रॉब्लम को करेंगे, अभी इसी असेंबली की प्रॉब्लम में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें मान लीजिए कि एक लेंथ दूसरी लेंथ से बड़ी हो. मान लो ट्यूब और रॉड की असेंबली, और रॉड जो है वो थोड़ी सी लंबी है या थोड़ी सी छोटी है ट्यूब से, और उस पर कोई एक कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल लोड लग रहा है, तो उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.